2006 में after my marriage, that's when I started off with my ACCA journey. So me along with my two sister-in-laws and my husband shifted to the UK. अब कुछ करना था. कौन सी कंपनीज में आपने यूके में काम किया था? So in UK, basically when I was studying full time, so I was working for Santander Bank, and that was like a part-time thing that all students basically used to do. And after I qualified, I straight away got hired by Asia TV UK, Wow. which is like the ZTV's UK office. Wow. Yeah. 2008 मतलब 2011 में जब मैं एक्चुअली इंडिया वापस शिफ्ट करी थी, तो मतलब एक्चुअली बीइंग वेरी कैंडिड, बहुत कम विजिबिलिटी, बहुत कम रिकग्निशन था इन टर्म्स ऑफ ब्रांड अवेयरनेस इन इंडिया इटसेल्फ. तो बताना पड़ता था कि क्या करके आए हो, ACCA क्या होता है. सो आई यूज्ड टू से कि यूके की CA करके आई. किस तरह के एम्प्लॉयर कैन बी मेंशन? So we have top tier investment banks, we have some boutique firms as well. So something that really will give you that exposure in FP&A. So that is something that we provide, and not just now. This is something that we've been providing for the last 15 years. हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे. आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, शी इज अ लेजेंड, और ACCA में शी इज वन ऑफ द मेंबर्स जो शायद जब कोई ACCA जानता भी नहीं था तब वो यूके से ACCA करके आई, and she came back to India because she wanted to give back to the society. So let's move right to our guest, Shilpi ma'am. Hello ma'am, welcome to the podcast. And कैसे हैं आप? Thank you so much, Satyat, for the warm welcome. And मैं बहुत बढ़िया हूँ. What about yourself? I am also very very good. And even आज जो हम यहाँ बोलने वाले हैं, this is going to affect lakhs and lakhs of lives, I am sure. Because जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये this one thing will shake the internet. I am sure about it. So let's start, ma'am. पहले तो लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी है आपकी जर्नी जानने के लिए कि आपने कैसे स्टार्ट किया, व्हाट वाज योर मोटिवेशन. तो थोड़ा बताइए मैम, व्हेन डिड यू स्टार्ट एंड हाउ डिड यू स्टार्ट? एब्सोल्युटली. तो मेरी जर्नी ACCA की बहुत अनकन्वेंशनल है, टू बी ऑनेस्ट. It's I don't think so there would be any other member who has actually done it the way I have done it. So 2006 में after my marriage, that's when I started off with my ACCA journey. So me along with my two sister-in-laws and my husband shifted to the UK. अब कुछ करना था. The three of us had lot of inclination towards finance and accounting. We were all three of us in fact were brilliant academically, you can say. तो एक पढ़ाई के लिए एक मोटिव बन गया कि चलो तीनों इकट्ठे कर सकते हैं. And that's when ACCA came into the picture. We had few friends and family back in the UK जिन्होंने basically guide किया that this is the course that you should be pursuing. So बस शुरू कर दी जर्नी. फुल टाइम स्टूडेंट्स थे तीनों. 2008 में इज व्हेन आई बेसिकली क्वालिफाइड विद माय ACCA. उसके बाद आई डिड सम फुल टाइम वर्क इन UK इटसेल्फ. 3-4 साल वहाँ काम किया. एंड दैट वाज द टाइम आई हैड टू डिसाइड बेसिकली कि अब वापस इंडिया जाना है, और इज इट गोइंग टू बी फॉर एवर इन द UK. द टर्निंग पॉइंट बेसिकली वाज बिकॉज माई सन वाज टर्निंग 3 years old. तो इट वाज लाइक उसकी स्कूलिंग स्टार्ट करानी. तो इट्स ईदर गोइंग टू बी हियर फॉर एवर, और इफ वी विश टू मूव बैक टू इंडिया तो मुझे उसको कंफ्यूज नहीं करना. आई वुड देन स्टार्ट ए स्कूलिंग फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ. सो दैट्स व्हेन आई केम बैक टू इंडिया. Got some corporate job again here. I was heading the head of compliance basically at a leading NBFC in India. तो सब चलता रहा. And it's actually after the birth of my daughter when I shifted back to ACCA and the trainings of ACCA. So 2016 is basically when I actually started coming back to the community, and that's it. There's been no looking back since then. Awesome, amazing journey. मैम, कौन सी कंपनीज में आपने यूके में काम किया था? So in UK, basically when I was studying full time, so I was working for Santander Bank, and that was like a part-time thing that all students basically used to do. And after I qualified, I straight away got hired by Asia TV UK, Wow. which is like the ZTV's UK office. Wow, that's awesome. मैंने बोला ना कि she is such a big inspiration. मतलब मैं तो इनको 6 साल से जानता हूँ, and every time I have a problem I look up to her and I get my मैं इनका mentee भी हूँ. So she's been my mentor. मैम ये बताइए कि how have you seen the ACCA qualification change from when you used to do it to now? अब कैसे change हो गया सब कुछ, like, and अब जो latest updates आए हैं, that has really upped the game for ACCA. Absolutely. See, that is the beauty of ACCA. 2011 में जब मैं एक्चुअली इंडिया वापस शिफ्ट करी थी, तो मतलब एक्चुअली बीइंग वेरी कैंडिड, बहुत कम विजिबिलिटी, बहुत कम रिकग्निशन था इन टर्म्स ऑफ ब्रांड अवेयरनेस इन इंडिया इटसेल्फ.
तो बताना पड़ता था कि क्या करके आए हो, ACCA क्या होता है. सो आई यूज्ड टू से कि UK की CA करके आई, Right. ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या Exactly. करके आई. And cut to, if you come to 2025, I mean, there are students, there are people who come up and tell me कि मैम ACCA कराना है बच्चे को. इनफैक्ट Right. क्वालिफाइड CAs आते हैं कि मतलब this is my भांजा भांजी, Absolutely. my kids, and I want them to pursue ACCA. Right. So that is the kind of 360 degrees, you can say, change I have seen in terms of the brand awareness, in terms of the dynamics of ACCA. And what I personally like about the qualification is कि it actually stands for its logo. It will think ahead. तो वो जो करिकुलम है, जो डायनामिक्स है, लाइक यू सेड, अब इतने मेजर क्वालिफिकेशन चेंजेस लॉन्च करे हैं, एंड इट इज समथिंग जो कि बाकी क्वालिफिकेशन ने शायद अभी सोचा भी नहीं होगा. ACCA सोच के उसको एग्जीक्यूट भी कर देते हैं, सो दैट 2027 प्लान इज ऑलरेडी रोल्ड आउट एंड दे विल स्टिक टू इट. मतलब आई हैव सीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, एक्चुअली इफ आई टेल यू, तब सभी क्वालिफिकेशंस के एग्जाम्स रुक गए थे. नोबडी वाज एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर द अनसीन, द पैंडेमिक व्हिच हैड हिट द एंटायर वर्ल्ड. ACCA was one qualification जिसने अपने 2025 के प्लान को अर्ली रोल आउट किया. 2020 में उन्होंने रिमोट एग्जाम्स को लॉन्च किया. सो द डायनामिक्स ऑफ दिस क्वालिफिकेशन इज एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव, एंड दिस इज समथिंग दैट टुडेज जनरेशन एक्चुअली वांट्स इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल सेट, इन टर्म्स ऑफ द टूल्स दैट दे एक्चुअली रिक्वायर टू बिकम एम्प्लॉयबल. तो जब हम बोलते हैं ना कि मतलब आप केस स्टडी सॉल्व करो, फॉर एग्जाम्पल, जो आपको स्किल सेट सिखाया जा रहा है, वो सब आप प्रैक्टिकली अपनी जॉब में यूज करने वाले हो. तो इट इज, I'm a huge fan of ACCA qualification, I must say. On the other hand, अगर हम ACCA को देखें, उनका करियर पोर्टल का जो लिंक है, उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, उनकी जो रिकग्निशन है अमंग्स द एम्प्लॉयर कम्युनिटी, वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इट हैज इंक्रीज्ड ओवर द इयर्स. एंड अल्टीमेटली हम कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्यों करते हैं? To get a good job, right? Yes. So that is like the end to the means, basically. Right. So maybe that was one of the pushing factors for ACCA. Okay. So मैम, आपके इस आंसर से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है, which is what about ACCA jobs? लोगों की जॉब लग रही है कि नहीं लग रही है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. आप इसको आज प्लीज पुट इट टू रेस्ट. अगर मैं इसको प्रैक्टिकली बोलूं, आई थिंक डिमांड बहुत ज्यादा है आज के डेट में भी, एज कम्पेयर टू द सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड, as compared to the supply of trained personnel. तो बेसिकली देखो, किसी भी क्वालिफिकेशन की सक्सेस कब है? जब उसकी डिमांड है, when there are employers who are looking out for that skill set. तो आज की डेट में अगर हम करियर पोर्टल का लिंक ही ओपन कर लें, 1000+ जॉब्स होंगी जो मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में ACCAs को मिल रही हैं. ACCA क्वालिफाइड मेंबर्स की नहीं बात करी, एफिलिएट्स की बात नहीं करी, स्टूडेंट्स को भी मिल रही है. In fact, few of my students, got hired by KPMG a couple of months back. Wow. और अभी वो skills level के बच्चे हैं. And KPMG is one of the biggest organizations in the world. Absolutely. So look at the kind of demand that this qualification brings to the table. तो आप अभी पोर्टल पे लाइव सर्च करो. I'm sure Accenture, EY, PwC, ये सब बिग नेम्स आपको लाइव एनी डे दिखने वाले. Right. So you know कि आप जिस क्वालिफिकेशन को आज परस्यू कर रहे हो, maybe it will take about 1 year, 2 years for you to complete. Right. But हाँ, उसकी डिमांड आज भी बहुत है. And with time तो obviously वो increase ही होगी. Absolutely. So coming down to your question again, demand definitely yes, but you have to upskill yourself with the right candidature that is required. Correct. तो सिर्फ एक BCom is not going to be enough. You have to upskill with a professional qualification like ACCA. But having said that, सिर्फ ACCA और BCom भी आज की डेट पे मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं. Right. क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे करें. अगेन इट्स अ फैक्टर ऑफ स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड. Right. आपका CV ATS कंप्लायंट है, आप फिल्टर हो गए इंटरव्यू के लिए, बट फिर भी अगर आप इंटरव्यू में जाके वो कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं दे पाओगे, हाउ विल यू बी सिलेक्टेड? तो इट्स अप टू यू कि आप अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पे कितना काम कर रहे हो. I always tell my students, in fact, Wall Street में हम ये कुछ अलग courses भी provide करते हैं to our students, not just ACCA, not just, push them for BCom, but we actually train them for some value-adding courses like financial modeling, basic to advanced Excel, Power BI, Python, the skills that actually employers want on the job. मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई भी एम्प्लॉयर आपको 3 से 4 महीना सिर्फ ट्रेनिंग का टाइम देगा. Absolutely, ma'am. That's a cost. Exactly. They want people, they want resources who are a ready package. Ready जिसको सब आता है. Right. लैपटॉप उठाओ, काम करते लग जाओ. It's Absolutely. as simple as that.
Right. तो you have to be that candidate. Yes. And प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको. Absolutely. आपका वैल्यू उतना ही है जो प्रॉब्लम सॉल्व आप उतनी कर रहे हो. जैसे कोई कहता है कि यार मेरे को ना कंपनी पैसे नहीं दे रही, तो तेरी ही कंपनी तेरे को अगर 10,000 दे रही, किसी को 10 लाख दे रही, किसी को 1 करोड़ दे रही. Absolutely. तो कितनी कंपनी की बढ़िया पेइंग problem. कैपेसिटी की प्रॉब्लम नहीं है. Exactly. Problem is not their bad pay masters. Problem Yes. is with what value you are bringing. Yes. Right. So अब मैम इससे ये बताओ, जैसे हमने सैलरी की बात करी, तो कितनी एवरेज सैलरी लगती है ACCA मेंबर और एफिलिएट दोनों की? See, again, it's a complete package, like I said. आप सिर्फ एक मेंबर या अफिलिएट हैं, तो स्टार्टिंग सैलरी वुड बी से अबाउट, अगर आप अफिलिएट हो तो 6 to 7 lakhs तो है ही है. अगर आप मेंबर हैं, which means you've got 3 years of experience on your back, so you can definitely expect somewhere around 10 lakhs to 12 lakhs to begin with. So the more you bring, the more experience, the more skill set you bring. So salary is something which is like a secondary factor. Right. That will come running after you. So Right. work upon yourself, your abilities, your skills Yes. first. Salary का मत सोचो. It is how good you are. That salary you can command. Exactly. तो आपके पास वो पावर है कि मैं कितना वर्थ हूँ for the employer. That is the kind of skill set we must work upon. वो सिर्फ मुझे 10 लाख की सैलरी चाहिए तो एक क्वालिफिकेशन कर लो, ऐसे नहीं चलता. इट इज द अदर वे राउंड. एग्जैक्टली. मतलब मैंने तो इवन हमारे इस वॉल स्ट्रीट पर ही जब मैं बैच लेता हूँ, तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, दे आर हैविंग दीज सैलरीज विदाउट द क्वालिफिकेशन एज वेल. सो बिकॉज दे हैव द राइट स्किल सेट, बट फिर भी वो ACCA कर रहे हैं, बिकॉज द क्वालिफिकेशन ना एक टैग दे देता है आपको कि यार यू आर कंप्लायंट विद एथिक्स, यू आर कंप्लायंट विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, IFRS. तो वो एक आपको बैकिंग मिल जाती है एक टैग की. एब्सोल्युटली. मतलब आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने बीकॉम करा, साथ साथ में ACCA Yes. करा, गॉट इनटू द बिग फोर्स, एंड देन सिर्फ मतलब KPMG इंडिया से ही कितने बच्चे सेकंडमेंट्स पे KPMG UK गए हैं, Right. Deloitte गए हैं UK, and other parts of the world as well. So this qualification is the pathway for you to be able to achieve your global dreams. Right. अब वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, that is that power is within your hands. Right. तो वो ग्लोबल पासपोर्ट आपके पास है, वो स्किल सेट आपके पास है. नाउ इट इज यू टू डिफाइन कि मुझे कौन सा पाथ पे लेना है. Absolutely. व्हाट ब्रिंग्स यू सेटिस्फैक्शन बेसिकली. एब्सोल्युटली. मैम ये बताइए कि अब आते हैं कि हम वॉल स्ट्रीट में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, किस तरह के कोर्सेज हम दे रहे हैं, एंड क्या लग रहा है वॉल स्ट्रीट को. व्हाट डज वॉल स्ट्रीट थिंक अबाउट द मार्केट, व्हाट डज वॉल स्ट्रीट थिंक अबाउट AI? ओके, आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस वन बाय वन. तो सबसे पहले तो वॉल स्ट्रीट की अगर बात करूं, तो इट हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 16 years. Their flagship program is the financial modeling and valuation course that the co-founders basically Yes. provide. And that is something that we also provide to all our integrated route students of ACCA. Right. Why so? Like I said, कि सिर्फ एक qualification is not going to be the ultimate game changer. What else do you know? What else does your CV command? तो वो जो ATS compliant resume एक बच्चे को बनाना है, we have to put in all of those skill set into that student. तो वो focus वो बड़ा clear है बच्चों के लिए. Supposingly कोई students after 12th आता है हमारे पास या graduation pursue कर रहे हैं, with or without exemptions, दोनों की चीज है, वो हम separately discuss करेंगे Right. कि हम advocate क्या करते हैं हाँ, basically, because like you are the one of the trainers Yes. of Yes. of our institute. तो वो आप भी वाउच करोगे इस चीज को कि जो बच्चा एग्जेम्पशंस के रूट के थ्रू आ रहा है, उसकी नॉलेज गैप हमेशा रहेगा. चाहे हम एक फाउंडेशन बैच प्रोवाइड Right, करते हैं, right. बट वो 20 आवर्स की नॉलेज 200 आवर्स की नहीं, फुल फ्लेजेड नहीं. क्लासेस को तो नहीं कंप्लीट करेगा. तो वो नॉलेज गैप के लिए हम चाहे फाउंडेशन बैच दे रहे हैं, बट आर यू स्किल्ड इनफ टू बी एबल टू कोप अप विद द रिगर ऑफ द एग्जाम दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 6 सब्जेक्ट ऑनवर्ड्स. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वी हैव पाथवेज फॉर बोथ द कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स. तो फाउंडेशन बैच इज समथिंग तो जो कि मतलब इज लाइक अ मैंडेटरी फॉर एवरी स्टूडेंट टू परस्यू. चाहे आप क्लास 12th के बाद 13 पेपर्स देने वाले हो, और इन द गोइंग करिकुलम अहेड 11 पेपर्स देने वाले हो, या फिर अगर आप एग्जेम्पशंस भी ले रहे हो, स्टिल दिस इज समथिंग व्हिच इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. इसके 2 पार्ट्स बना रखे हैं. सो MA की नॉलेज भी कवर बिकॉज दैट लीड्स टू योर PM. FA की नॉलेज अगेन भी कवर बिकॉज दैट लीड्स एज अ बेस फॉर योर FR. तो वो जो बेसिक एक फाउंडेशन चाहिए बच्चे को टू बी एबल टू कवर अप विद द रिगर ऑफ द ACCA एग्जाम, वो हम एक पहले प्रोवाइड करेंगे. अगेन कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट और द सर्विसेज एट एट वॉल स्ट्रीट स्कूल फॉर ACCA. तो पहली चीज तो हमारा ये फाउंडेशन बैच रहा. सेकेंड वुड बी दैट वी प्रोवाइड ऑफलाइन क्लासेस इन दिल्ली एंड मुंबई. सी वो कोविड का टाइम था कि जब सब बच्चे ऑनलाइन पढ़ गए या कर लिया.
आज की जनरेशन को बहुत डिस्ट्रैक्शंस है. आई मीन नॉट जस्ट टुडेज जनरेशन. आज मेरे पास भी कोई रील आती है, वो आधा घंटा मेरा कहाँ जाता है, बिकॉज यू टेंड टू जस्ट कीप ऑन स्क्रोलिंग. एग्जैक्टली. तो वो डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए हमें बच्चे को क्लास में बिठाना पड़ता है. एटलीस्ट जब आप सामने से पढ़ा रहे हो तो स्टूडेंट विल नॉट हैव द ऑडेसिटी टू गो थ्रू रील्स. राइट. वो एक कंसंट्रेशन बेटर Exactly. रहती है. प्लस few students are shy of nature, Yes. by nature only. Yes. तो अगर वो नहीं भी क्वेश्चन पूछ रहे, नहीं भी अपना डाउट पूछ रहे, आई फील एज ट्रेनर्स एंड मेंटर्स वो शक्ल देख के हमें पता चल जाता है कि भैया इसको नहीं समझ में आया. आई प्रोबेबली नीड टू रिपीट द कॉन्सेप्ट. है ना, आपके साथ भी क्लास में ये होता है. एंड दैट इज वन ऑफ द USPs दैट वी गेट इन टर्म्स ऑफ द फीडबैक दैट वी गेट फ्रॉम योर क्लास ऑल्सो, कि नहीं सत्यार्थ सर अगर हम नहीं भी डाउट पूछते तो वो हमें दे विल रिपीट बिकॉज वो समझ जाते हैं कि हमें शायद कुछ अभी और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है. So that is again one of the USPs. Offline class में plus the kind of support that we are providing. So I am obviously there to mentor each and every student individually. Plus all the trainers are qualified ACCAs like yourself. Right. तो वो जो एक filtering process है Yes. वो बहुत stringent है मेरे लिए. Right. Because I very strongly feel कि अगर किसी trainer ने खुद ही वो exam नहीं कर रखा, Right. qualified CA भी है for Yes. example, तो वो लेकिन ACCA को नहीं पढ़ा सकता. Exactly. टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट है. Exactly. एग्जाम टेक्निक, एग्जाम को लिखना कैसे है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, रिक्वायरमेंट को कैसे इंटरप्रेट करना है, इज एक्सट्रीमली डिफरेंट, डिफिकल्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर क्वालिफिकेशन. तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस बहुत स्ट्रिंजेंट है मेरे लिए कि ऑल ट्रेनर्स आर गोइंग टू बी क्वालिफाइड ACCAs themselves. Right. तो दैट इज अगेन समथिंग दैट एक्ट्स एज अ वैल्यू एड. प्लस लाइक जो क्लास में आप लोग नोट्स यूज कर रहे हो, दैट इज अगेन द प्रीमियम कंटेंट ऑफ ACCA व्हिच वी परचेस्ड फ्रॉम ACCA. तो हम किसी ट्रेनर नोट्स पे रिलायंट नहीं है कि भाई यू प्रोबेबली विल फील कि ये टॉपिक ज्यादा अच्छा है Right. बिकॉज आई एम प्रोबेबली गुड एट इट. Right. दूसरा मेरे को थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा अपने तरीके से Right. डिफाइन कर. Right. दिस इज कमिंग राइट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन. Yes. जो आपकी Right एग्जामिनिंग from the बॉडी है, horse's mouth. यस, Right. जो एग्जामिनिंग बॉडी है बेसिकली दे आर टेलिंग यू टू डू दिस. Yes. इट्स मोर गाइडेड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, Right. कि ये करना है, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने. ऑब्वियसली देयर इज अदर वैल्यू एड Yes. होमवर्क एंड एवरीथिंग दैट वी प्रोवाइड, बट हाँ इट्स वेरी गाइडेड. 2.5 months, 1 paper, 1 quarter, 1 exam, very very doable. Right. And that we've seen Yes, we've कि वो absolutely. students are much more confident Yes. when they are entering into the Yes. exam. So like you do your progress test. अब हमारे लर्निंग पेडागोजी को हमने कैसे स्प्लिट कर रखा है कि जब आपके 3 से 4 चैप्टर हो जाएंगे तो यू विल गेट अ टेस्ट. Get a test. उस टेस्ट से मुझे पता चलता है कि बच्चा घर जाके होमवर्क करता है कि नहीं Yes. करता, Exactly. whether they are doing their revision which is Exactly. required or not. Exactly. देखो क्लासेस तो is one thing, that is the starting point. Yes. इट्स अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. तो घर जाके पढ़ना पड़ेगा. मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स आते हैं फॉर मेंटरिंग तो मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ, मुझे बच्चे से सिंसियरिटी चाहिए. एवरीथिंग एल्स वी विल टेक केयर ऑफ. Yes. अगर आप सिंसियर हो अपनी पढ़ाई में, अगर आप कर रहे हो जो आपका ट्रेनर, आपका मेंटर आपको गाइड कर रहा है, यू विल डेफिनेटली पास योर एग्जाम. तो Right. उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है. बट वो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. आई कैन नॉट गो एंड गिव द एग्जाम ऑन Yes, योर बिहाफ. exactly. आप भी नहीं दे सकते हो. Exactly. So as much as good deliverables we can provide, मेहनत बच्चे को करनी है. Right. बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं बच्चे को देती हूँ कि सपोजिंगली अगर आपने CA में एनरोल कराया होता तो बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में होता ना, अरे भाई बहुत पढ़ना पड़ेगा. तो वो माइंडसेट लेके आओ. उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा. यू Correct. कैन हैव अ गुड हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस, एंजॉय योर कॉलेज लाइफ ऑल्सो. बट हाँ पढ़ना तो पड़ेगा भाई, मतलब उसका कोई हाँ, उसका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है. substitute सत्यार्थ या मैं जाके आपका एग्जाम नहीं देने वाले. देखो हम तो हो चुके हैं पास. एग्जैक्टली. नाउ इट इज अप टू यू कि आपको ढंग से पढ़ना है आपको. तो गाइस आपने देखा वॉल स्ट्रीट कितना प्रीमियम ऑफरिंग्स आपको दे रहा है एट वेरी वेरी अफोर्डेबल रेट्स. आपको मैं नीचे वॉल स्ट्रीट का चैनल लिंक कर दे रहा हूँ, प्लीज जाइए, हमें भी सब्सक्राइब करिए और वॉल स्ट्रीट के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए. इट इज इट्स अ एनसाइक्लोपीडिया. वहां पर जाएंगे आपको CFA, FRM, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ACCA पर बहुत कुछ मिल जाएगा. तो डू चेक दैट आउट गाइस. अच्छा मैम ये बताइए कि जैसे हमने बात करी, एक बच्चा है जिसका जो PER है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिकॉर्ड, एक बच्चे का हुआ फ्रॉम अ बिग 4, बिग 5, बिग 6 या गूगल, Amazon, नेटफ्लिक्स इस तरह से, BCG, बेन मैकेंजी से हुआ, और एक बच्चा किसी और कंपनी में, किसी और छोटी फर्म में गया. क्या इन दोनों के सैलरीज में डिफरेंस होगा आफ्टर 3 years? सी सैलरी में डिफरेंस होगा डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल दैट यू आर लुकिंग फॉर. अगर आपके पास उस प्रोफाइल का रेलेवेंट स्किल सेट है, सो देन दैट एक्सपीरियंस काउंट्स. Right.
अगर आपने कुछ और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट में वो रेलेवेंट स्किल सेट नहीं गेन किया है तो ऑब्वियसली वो सैलरी प्रोफाइल डिफरेंट होगी. Right. So brand name of the organization matters, but only to a certain limit, I feel. Right. उसके बाद आपका खुद का स्किल सेट है कि आपको कितना काम आता है, Absolutely. how much you have really mastered in that particular profile, in that particular skill set. Right. उसके बाद that is all that matters. Right. तो run after brand names, but only up to a limit कि जहाँ पे वो आपको लग रहा है कि आपको value add provide कर रहे हैं. Okay. If it is relevant for you, absolutely go for it. If not, and if a smaller organization is able to give you a better profile, better salary packages, more exposure early on in your career, तो definitely उस पे जाना चाहिए. I feel कि जितना आप अपने आप को groom करोगे, Right. उतना ही अच्छे you become the resource that probably you want to dream for. Yes. अच्छा मैम, let's move on a bit from ACCA to another qualification जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और इन बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद है. बहुत कमेंट्स आते हैं इसके ऊपर. हमारा अभी एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ, बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया. वाज विद मिस्टर विनीत पवार एंड CMA US के बारे में बात कर. सो हाउ वॉल स्ट्रीट इज लुकिंग एट CMA US एंड व्हाट आर द prospects of a student for CMA US since you are heading that vertical as well, so I would like to ask. Absolutely, and I think you will definitely vouch for both the qualifications because आपने दोनों कर रखी हैं. And personally, see, these are not two competing qualifications. Right. वो बच्चे के लिए बहुत easy है differentiate करना कि मुझे ग्रेजुएशन के साथ में ACCA करना है कि मुझे ग्रेजुएशन के साथ में USCA में करना है. Depending upon, again, like I said, कि what excites you, what is that something that you are looking out for your career. अगर एक broader qualification चाहिए, अगर global recognition चाहिए in terms of 180 plus countries में recognition चाहिए, you are somebody who brings an expertise in terms of audit, accounting, taxation, like I said, more broader finance, everything included, तो ACCA करो. Simple है भाई. अगर आपका vision है कि you want to work for a US based MNC, you want to work into the internal reporting segment, the strategic decision making roles, तो आप USCA में करो. Right. तो दोनों ही क्वालिफिकेशंस बहुत ही इजीली मैनेजेबल है और इजी डिसीजन है स्टूडेंट के लिए. एंड एट द सेम टाइम रिटर्न दोनों का ही बहुत अच्छा है. अगर हम ROI की बात करें तो दोनों का ही रिटर्न बहुत अच्छा है इंडिया में, फॉर एग्जांपल. तो लाइक वी नो दैट इंडिया इज नाउ द GCC कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. तो दोनों ही क्वालिफिकेशंस की डिमांड इज ऑन द इज सर्जिंग बेसिकली एवरी डे इन एंड डे आउट एज वी स्पीक. तो अब दोनों में से आपका कौन सा प्रोफाइल आपको कौन सी एक्साइट करती है विल बी योर चॉइस. कि मुझे अभी ब्रॉडर क्वालिफिकेशन चाहिए तो चलो ACCA करना चाहिए. If I am somebody who probably has a couple of years of experience down the line, वो next jump internally लेने की सोच रहे हैं, strategic decision making में, MIS में, that is what your profile you already are in, or you want to make, फिर USCA में करो. ठीक है. तो वो डिसीजन मतलब बहुत सिंपल है, I feel. तो मैं इसको एकदम सिंपल ब्रेक डाउन करता हूँ. आपको CFO बनना है तो आप ACCA कर लो. Absolutely. आपको CXO CEO बनना है तो CMA US is a good option. एंड एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ क्योंकि आपको लगेगा यार CFO तो CEO को रिपोर्ट करता है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, lot of companies CFOs have more power than the CEO. Absolutely. In fact मैं आपको वोडाफोन के बारे में बताऊं तो हमारी जो CEO हैं, she was earlier the CFO. So she moved from being a CFO and उनके पहले भी जो CEO थे, he was also a CFO and then he moved from being a CFO to a CEO. तो देखो अब क्या हो गया है, मैम भी आई थिंक इस बात को अग्री करेंगी कि फाइनेंस सिर्फ एक वो नहीं रह गया कि आपको अकाउंटिंग नंबर्स हैं. फाइनेंस इज स्ट्रेटजी इन इटसेल्फ. एब्सोल्युटली. वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो आपको आती है, that is what differentiates you from any other person. In fact, एक special profile है आप कंपनीज में, chief value officer. Yes. So it is how much value you are actually bringing to the organization. Right. So this is the kind of skill set that these qualifications equip you with. Right. अब आपको साथ में चाहे US CPA हो, CMA हो, ACCA हो, इनफैक्ट CF हो, ये सब बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस है. बट वो डिसीजन आपका खुद का है कि इज दिस व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एंड इज दिस व्हाट आई नो आई वांट फ्रॉम माय करियर. तो फिर अकॉर्डिंगली चूज करो. बट हाँ, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जरूर करो साथ में. हाउ डू यू सी मैम IIM, SP Jain, MDI Gurgaon compared to ACCA CMA US? How do you see an MBA from these institutes versus the ACCA CMA US? Obviously we know in institutes में cost बहुत ज़्यादा लगती है, ROI उतना अच्छा नहीं है, but ACCA CMS का ROI. But apart from that, how do you see these two panning out? See,
MBA is something which has always been there basically. वो जब मैं कर रही थी तभी थी. In fact, I did my BCom, then did my MBA, Right. and after that I did my ACCA. तो वो MBA जब आप कर रहे हो तो वो आपका रोल जो आप what you want from your career is clear. But probably I would still categorize it as a traditional qualification. MBA in marketing, finance, accounting आपने कुछ भी कर रखा है. That is something that has always been there. As vis-a-vis अगर हम एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, be it ACCA, be it USCMA, तो वो आपका एक प्रोफाइल बहुत फिक्स्ड है. मतलब that is it's kind of niche market that Right. you've already paved for yourself. Right. कि मैं सिर्फ एक MBA नहीं हूँ, मैंने साथ में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है with BCom. So in today's dynamic, world that we're living into, it is so much AI driven. It is so Yes. much, like employers want profiles, employers want candidates who have all of this skill set. अगर मैं एक SBL पेपर की बात करूँ ACCA, तो Yes. it is like a mini MBA. Absolutely. It teaches you everything that an MBA is probably going to Yes. teach you, Yes. plus much more. That's much more. So that is how it is different Right. from any other qualification. Right. मैम ये बताइए कि मेरा टॉप 15 बिजनेस स्कूल्स में नहीं हुआ, मैंने कैट दिया मेरे टॉप 15 बिजनेस स्कूल्स में. व्हाट मेक्स मोर सेंस, टियर 2 बिजनेस MBA स्कूल में जाऊं या इन क्वालिफिकेशंस की ACCA, CMA, CFA, इन क्वालिफिकेशंस की? व्हाट मेक्स मोर सेंस इफ आई वांट टू गेट इनटू स्पेसिफिकली फाइनेंस? I would any day vouch for a professional qualification. Be it ACCA, अगर finance is what excites you, then do CFA. मतलब हर डोमेन का, हर एक्सपर्टीज का एक रेलेवेंट स्किल सेट है जो आपको कर सकते हो. अगर लाइक आई सेड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, इंटरनल रिपोर्टिंग में जाना है तो CMA करो. अगर ब्रॉडर वो चाहिए, आपको स्किल सेट चाहिए तो ACCA करो. Right. If only finance is what excites you, then probably look for CFA. CFA, right. तो सिर्फ एक MBA is not the defining criteria. वो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस शायद मेरे टाइम पे होती थी जब मैंने करा था, Exactly. कि भाई पहले BCom करेंगे फिर MBA करेंगे. I mean, we had no other option Right. probably. अगर मैं UK ना जाती तो शायद मैं अभी ना करती ACCA, Yes. because तब तक विजिबिलिटी नहीं थी इंडिया में. Right. तो अब लेकिन स्टूडेंट्स को सिटिंग इन इंडिया दे कैन डू ऑल ऑफ दीज प्रोफेशनल इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस विद ग्रेजुएशन. तो वो अकॉर्डिंगली आई थिंक स्टूडेंट्स कैन मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, मोर इन्फॉर्म्ड, क्योंकि चॉइसेस अवेलेबल है उनके पास. राइट. इस पर एक छोटा सा जोक है कि पहले हमने देखा कि imshadi.com, फिर आया IITshadi.com, फिर CAshadi.com. अब बहुत जल्दी मुझे लगता है कोई ना कोई देख रहा होगा इस पॉडकास्ट को तो जरूर ACCashadi.com बना देगा या CMA US Shadi.com. अच्छा मैम, कमिंग टू द सीरियस टॉपिक, वॉल स्ट्रीट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स क्या काम कर रहा है, किन एम्प्लॉयर्स के साथ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, किस तरह के हमारे डायलॉग्स हैं जो एम्प्लॉयर्स के साथ है? बिकॉज ऑब्वियसली वी प्रोवाइड एम्प्लॉयबिलिटी व्हेन वी टीच यू, यू आर विद अस, वी एंश्योर कि आप एम्प्लॉयबल हो. तो किस तरह काम वॉल स्ट्रीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी? I think that is one of the USPs of the Wall Street School. In fact, अगर आप वॉल स्ट्रीट के वेबसाइट पे जाओगे, there is a live placement page there, राइट. which has all the profiles active. LinkedIn profiles are linked of the students जिनकी एम्प्लॉयबिलिटी, जिनकी जॉब वॉल स्ट्रीट के थ्रू लगी है. राइट. और ये आज कल 2 साल की बात नहीं मैं कर रही हूँ, इट सर्कल्स बैक टू 2011. राइट. तो आप 2011 में किसकी हायरिंग हुई थी उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्लिक करके यू कैन गो एंड चेक. ओके. So it's completely transparent, it's 100% authentic, and this is something which is the forte of the Wall Street School. तभी जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ अकाउंटिंग प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, be it USCMA, be it ACCA, वो सब इंटीग्रेटेड रूट पे जाते हैं. ओके. तब द पाथवे दैट वी क्रिएट फॉर देम इज सिंपल. आपको क्या करना है, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, साथ साथ में अपने स्किल्स लेवल तक के पेपर पे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो. राइट. बी इट बाय द एग्जामिनेशंस रूट, बी इट विदाउट द एग्जामिनेशंस रूट. पहले 9 पेपर में कहती हूँ सिर्फ पढ़ाई करो, साथ साथ में ग्रेजुएशन करो. नाउ अब आपका स्किल्स लेवल का एग्जाम जब खत्म हो गए हैं, नाउ इज द टाइम टू एनरोल फॉर आवर वैल्यू एडिंग कोर्सेज. लाइक आई सेड, फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स करो, बेसिक टू एडवांस एक्सेल का कोर्स करो, स्टॉक मार्केट की नॉलेज लो, आप AI की नॉलेज लो, पाइथन की नॉलेज लो. These are the skills on the basis of which we can get you placed at the organizations. Right. These organizations, I would not say कि बहुत big 4, big 10 नहीं है, but these are the organizations that will give you the skill set Yes. for 1 year by the time you are doing your ACCA qualification. Right. अब हुआ क्या बेसिकली बच्चे का, मैं अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ उस रोड मैप को, तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, आपके पास 1 साल से एम्प्लॉयबिलिटी है, जॉब में हो आप 40-50 हजार अगर आप पहले से कमा रहे हो,
By the time you finish your ACCA, you are somebody who has all of this. Right. At least 1 year का experience है. Internship की बात नहीं कर रही. प्रॉपर वो जॉब 6-7 हजार वाली इंटर्नशिप नहीं करानी मुझे बच्चे को. मैं चाहती हूँ कि वो फुल टाइम एक्चुअली में स्किल सेट को ग्रूम करे. एग्जैक्टली 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस उस स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस लेवल को ही Yes. चेंज कर देता है. उसका सीवी बदल गया Yes. उसका बोलने का तरीका आ गया Absolutely. उसको जाके सुबह लैपटॉप खोल के क्या मेल चेक करना आ गया मेल भेजना आ गया आई Absolutely. थिंक 90% काम मैं आपको खुद बताता हूँ मैं वोडाफोन में 90% काम है मेल भेजना एंड हाउ गुड इज दैट ईमेल दैट विल अगेन डिपेंड ऑन हाउ Absolutely. वेल यू पॉलिश योरसेल्फ तो दैट इज आई थिंक मेरे को लगता है कि बहुत ही गजब का काम कर रहा है वॉल स्ट्रीट इस चीज के अंदर तो किस तरह के एम्प्लॉयर्स हैं कुछ कैन वी mention a few? So we have top tier investment banks. We have some boutique firms as well. Okay. So something that really, will give you that exposure in FP&A. Okay. So that is something that, we provide. And not just now, this is something that we've been providing for the last 15 years. So website पे जाओ, placement, page को live देखो. Right. And I'm going to link the website in the description. Please guys go and check out. एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वॉल स्ट्रीट से कुछ वैल्यू एडिशन अगर मिला है आप वॉल स्ट्रीट के स्टूडेंट रहे हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि यस यू बिन देयर और इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है इतना बड़ा 15 साल से इसका एक एल्यूमिनाई नेटवर्क है तो जाओ आप लिंक्डइन पर जाओ ऐड करो उनको उनसे बातें करो डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकल कर जरूर आएगा मैम नाउ टेल मी समथिंग कि अब हाउ आर यू लुकिंग एट इंडिया ACCA एंड AI ये 3 चीजों को आप कैसे देख रहे हो एंड वॉल स्ट्रीट कैसे देख रहा है See, AI is the future. Everybody is using it. You and I use it. Yes. Day in, day out. तो आई थिंक अगर हमें फ्यूचरिस्टिक आउटलुक रखना है अपना लाइफ में अगर वी वांट टू एम्ब्रेस द फ्यूचर तो वो AI है. इट इज Right. देयर टू स्टे. Yes. सो हमें अपने स्किल सेट में उस AI को इंक्लूड करना है. डू वी हैव द पावर टू बी एबल टू यूज द AI टूल्स टू सुपरचार्ज आवर करियर. Right. So it is there to help you out, make more informed decisions. Routine, mundane task तो AI कर देगा. Yes. तो आप क्या कर रहे हो? Exactly. How do you differentiate yourself? Are you able to use those tools to make better decisions for yourself? Right. तो वो एक स्किल सेट बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, हर किसी को आज की डेट में एम्ब्रेस करने के लिए. Absolutely. जैसे जब कंप्यूटर्स पहली बार हाँ. लॉन्च हुए तो Y2K मूवमेंट एक Yes. बार जब आया था कि Yes. अरे पता नहीं क्या ही हो क्या जाएगा. हो जाएगा सबकी जॉब चली जाएगी ऐसा Exactly. लगता था, and और जॉब्स क्रिएट हो गई This is exactly what is going to happen as well with AI. राइट So you are there, आप वो स्किल सेट को इम्बाइब करो, एम्ब्रेस करो उसको एंड यूज इट फॉर योर ओन better informed decision making. Right. In your that should be added as one of your tools in your CV basically. तो वो बहुत जरूरी है. सो ACCA ने ऑलरेडी AI को इंटीग्रेट कर दिया Absolutely. 2027 में आएगा मैम डू यू सी इंडिया ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ द वर्क द GCC वर्क दैट वील गेट एंड हाउ मेनी इयर्स डू यू थिंक दिस मूवमेंट विल लास्ट See, India is already the GCC capital Yes. of the world and it is going to stay. अगर हम वैसे ग्लोबल लेवल पे भी देखें तो टॉप कंपनीज के CEO, CFO Yes. सब इंडियंस ही हैं. क्यों Exactly. हैं? Because we are laborious by nature. Plus we have that acumen to be able to study से हमें कभी डर नहीं लगता. हार्ड वर्क से हमें कभी डर नहीं लगता. एग्जैक्टली So India as a superpower is going to stay and it is only going to grow. So it is not कि it is something which is कि अब वो एक मूवमेंट आएगा और चला जाएगा. It is only going to rise. लाइक चाइना अभी तक कोई चाइना को इतनी बातें होती हैं कि चाइना को कोई रिप्लेस कर देगा चाइना +1 हो जाएगा बट जो कैपेबिलिटीज चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में बना ली हैं वो अब Absolutely. यू कैन नॉट रेप्लिकेट दैट सेम आई थिंक विद इंडिया जो हम कैपेबिलिटीज विद द एडवेंट ऑफ ACCA CMA CFA ऐसे कोर्सेज के साथ जो हम कैपेबिलिटीज बना ले रहे हैं यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगले 50 साल तक किसी भी और देश की होने वाली है Absolutely. so that guys should give you some hope and ma'am what are the future plans Well, future plans for the Wall Street School for our students is to stay committed. तो जब आप एक कमिटमेंट लेवल पे रहोगे कि हाँ दिस इज at the end of the day is it something that the students are looking out for, is it something which will bring a value add for the students, if yes we will look for it. Like you've been there taking the classes and also I never kind of restrict की number of hours. अरे 50 घंटे में खत्म करना है. No, Never. I am the one in fact who's pushing you Yes. to take extra Yes. classes. Yes. All I want is good results. तो Yes. वो good results के लिए whatever is required we will be there.
So तो वो कमिटमेंट पूरा रहेगा हमेशा. So basically we are result oriented. हम Absolutely. पूरा फोकस हमारा रिजल्ट्स पे है. We don't promise you the moon, but we say कि आप हमारे साथ आओगे, सिंसियर रहोगे जैसे मैम ने बोला, you will get the results. ठीक है, but it is an effort from our side, from Wall Street side as well as you. So एक हाथ से जैसे ताली नहीं बजती. Absolutely. मतलब मैं वही बोलती हूँ कि there are so many resources that ACC already has provided, plus the value adding resources that we provide. कि मतलब अगर आपने प्रोग्रेस टेस्ट कर लिए, मॉक एग्जाम्स कर लिए, पास्ट एग्जाम्स अपने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे कर लिए, प्लस आई ऑल्सो शेयर सम एडिशनल सेक्शन वाइज टेस्ट एंड मॉक्स विद द स्टूडेंट्स. ये सब आप कर लोगे तो फिर मतलब हो ही नहीं सकता ना कि आप पास नहीं हो. Right. So वो sincere effort to do all of the resources that will be provided to you has to come in. बस that is all that is required. Okay. Ma'am, before we close, a quick rapid fire. What comes to your mind when you hear these words? CMA US. CEO, top tier strategic decision making. FRM. Risk, perfection for risk. Okay. CFA. Zenith for finance, students. FRM I've told. CFA. CIA पे बहुत हिट्स आते हैं. CIA के बारे में क्या सोचते हैं? I would still call it a niche market. अगर आपका फोकस सिर्फ इंटरनल ऑडिटिंग में, then definitely go for it. Definitely. Okay. CPM. Again, US driven हो अगर तो फिर CPA करो. Okay. And Wall Street. Perfect. Thank you so much, ma'am, for joining us and हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मिलने के लिए, उनको इतना सारा ये जो मैम अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया, एक बाइबल है. तो थैंक यू सो मच मैम. आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट एंड आई होप मैं मैम को बार बार दोबारा लाता रहूंगा. प्लीज मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि डू यू वांट मैम टू बी बैक with some of your specific questions. Thanks a lot, ma'am, and bye bye guys. Thank you. Thank you so much, Satyat, for having me here. It is always a pleasure to be with you. Thank you so much. Thank you, guys.